हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका महतो। तो आज का ये वीडियो होने वाला है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स लाइव टेस्ट के ऊपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंग्लिश का सेक्शन आया। आरसी एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। One of the most influential social and religious reforms of 19th century, Ram Mohan Roy, born on May 22, 1772 in what West then Bengal Presidency, Radhanagar in Hooghly district, would have turned to 50 years this year. Rajaramana set up the Hindu College by collaborating with Ishwar Chandra Vidyasagar. Hooghly district would have turned to 50 this year as grapples कहाँ दिया है ब्राह्मण प्रे सिस्टर इन लॉ मुगल्स ईस्ट इंडिया 18th century। क्या बनाया था चंद्र विद्यासागर के साथ में हिंदू कॉलेज पूरा ही पढ़ लेते हैं। To 50 years this year as Indian grapples increasing with changing social religious circumstances. Roy's work in the sphere of women's emancipation, modernizing education and seeking changes to religious orthodoxy finds new relevance in this time. Born into a prosperous upper caste Brahmin family, Roy grew up within the framework of orthodox caste practices of his time. Child marriage, polygamy and dowry were prevalent among the higher castes, and he had himself been married more than once in his childhood. The family's affluence had also made the best in education accessible to him. A polyglot, Roy knew Bengali, Persian, but also Arabic, Sanskrit, later English. His exposure to the literature and culture of each of these languages bred particular such as Satya compared Roy's sister-in-law had been one such victim after his eldest brother's death, and it would be stay with him the one of Mughals and ascendancy of East India Company in Bengal towards the end of the 18th century was slowly coming into his own education, studying in Vedas and Upanishads, but also religious texts, Islam and Christianity. He wrote extensive tracts on various matters of theology, politics, and human rights, and translated Bengali Bharat Patak. Ram Mohan combined his person. In 1914, he started Atmya Sabha. Vedanta campaign Atmya Sabha would make Brahmo Sabha in 1828. Rabindranath Tagore's father, his Brahmo Sabha that later became Brahma Samaj, evolved. इसके ऊपर कुछ था ना, सती वाज एबोलिश्ड अंडर, अच्छा नहीं दिया है कुछ। रविंद्रनाथ टैगोर वाज कॉल्ड भरप्रथिक. Atmya Sabha was set up by Raja Ram and Rabindranath Tagore. Atmya Sabha in 1814 he started. He मतलब Rabindra Tagore called him रविंद्र टैगोर उसके पापा है. Rabindranath Tagore called him Bharat Pathik, by which means say Ram Mohan combined in his person analytic spirit and cosmetic. He started in 1814. He started Atmya Sabha, Society of Friend Nature Vedanta. Atmya Sabha would way for Brahmo Sabha in 1828. State of with Devendranath Tagore, Rabindranath Tagore's father. Called him Bharat Pathak. Called whom? By which he. किसको बुलाता था? Was also time when Roy was slowly विकास रॉय को रविंद्रनाथ टैगोर रॉय को भारत इसको बोला था रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये तो रॉन्ग है. तो फिर क्या बोला गया है? आत्म्य सभा सेटअप बाय राजा राम एंड रविंद्रनाथ टैगोर. नहीं, वो तो उसके पापा के किए थे ना. कौन सा लाइन था? ब्रह्म सभा इनिशिएटेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ के पापा. His Brahma Sabha that later become Brahma Samaj evolved as reaction. तो ये रॉन्ग हो गया. थर्ड रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग. राजा राममोहन रॉय सेट ऑफ विथ हिंदू कॉलेज बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर.
1830 में सती प्रथा एब्लिश हुआ था. He followed with the Anglo-Hindu school in 1822 and 1930, associated, which later became the Scottish Church College. It was his relentless advocacy alongside Alexander Duff assisted Roy in setting up the Scottish Church College. Alexander Duff to set up the Raja Ram Mohan Roy set up the Hindu college by collaborating with ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ में. ये कुछ था ना. Alexander Duff assisted Roy in setting up the Scottish Church. Alexander Duff to set up. He followed it up with Anglo Society in 1803. Assisted Alexander to set up the General Assembly institution, which later assisted Alexander Duff. ये तो उल्टा है, ये नहीं आएगा. और सत्यवास ये नहीं था, ये भी नहीं था. आत्मसभा ये भी नहीं था, यही होगा. राजा राम मोहन रॉय सेट ऑफ द हिंदू कॉलेज ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये रहा. It was his relentless advocacy alongside contemporaries such as Ishwar Chandra Vidyasagar that finally led to the evolution of Sati under 1829. Raman Roy set up the Hindu college by collaborating with Ishwar Chandra Vidyasagar. Anglo assisted the setup. It was his relentless advocacy alongside such as finally led to the evolution under हिंदू कॉलेज. तो स्कॉटिश का बात कर रहा है. कन्फ्यूजन क्यों है इसमें था. व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्रह्मो समाज. रीज़न क्या था ब्रह्मो समाज बनने का. ब्रह्मो समाज यहीं कहीं पे था ना. ब्रह्मो समाज ब्रह्मो समाज ये रहा. द आत्मीय सभा वुड बी मेक वे फॉर ब्रह्म सभा. His Brahma Sabha, that later became Brahmo Samaj, evolved as reaction against the uppercase social customs, rituals, a reformed spiritual Hinduism that believes a monotheism and the uniformity of all men irrespective of the caste. To initiate करने के लिए fight against upper caste, to upper right of petition or sir in reformed Hinduism that believes in monotheism. What made Raja Ram Mohan Roy's spectacle about religious dogmas and social strictures. Mughals and descent क्या ऑप्शन क्या है. His exposure to literature, birth, exposure to culture because of the sweeping change brought by Bengal Renaissance. Indian grapples royal works in the sphere of women's emancipation, modeling education, born into prosper of upper caste, grew up within framework of orthodox caste practices of his time. Child marriage, polygamy, dowry were prevalent among the higher castes, and he had himself been married more than once in childhood. The family influence. His exposure to literature and culture of each of these languages bred in him a skepticism towards religious dogmas and his exposure to literature and culture. A and B. His birth in a prosperous upper caste. नहीं upper caste में था वो. Born into a prosperous upper caste Brahmin family, Roy grew up with family of Orthodox. हाँ तो ये उसका रीज़न था. According to the passage, which of the following not true regarding Raja Ram Mohan Roy? उसके लिए सही नहीं है. He had access to the best education, knew 5 languages. His reforms, the agendas of supported by his countrymen. His relentless advocacy alongside his competitors led to the abolition of Sati. तो ये तो आएगा, ये तो हुआ था ना लास्ट वाला. He had access to the best education. एजुकेशन. उसके एजुकेशन के बारे में कहाँ बोला गया था.
Agree this year grapples situation of circumstance, modernizing education, seeing change leisure, born into prosperous upper caste. Roy grew up within framework orthodox caste practices of this time, family affluence and बेस्ट एजुकेशन. हाँ, तो उसको बेस्ट एजुकेशन मिला था. उसको 5 लैंग्वेज पता थे. 5 लैंग्वेजेस 1 2 3 लेटर इंग्लिश. हाँ, 1 2 3 4 5 उसको पता था 5 में. तो हिज रिफॉर्मिस्ट एजेंडा वेयर सपोर्टेड बाय हिज कंट्री मैन. उसको सपोर्ट मिला था कि रॉय सिस्टर ईस्ट इंडिया. रॉय हिज एजुकेशन theology spent considerable Vedas, human right and texts which combined. Ram Mohan combined his personal spirit, Atmiya, ideal monsoon, child marriage. During the Bengal, it also sweeping social changes and birthed the Brahmo religion. His reformist agendas were supported by the countrymen. यही लग रहा है आंसर जो, बट मिल नहीं रहा है कहीं पे. During his Kolkata prominent public intellectual, he collaborated with Scottish this. It was his relentless advocacy alongside and finally evolution under the Royal Archduke Wright Patterson as modern liberal discovered their peril non-conversion bring with its own share of it. Roy was given the title of Mughal Emperor. It was अमेरिका कंट्रीमैन हु फेल थ्रेटन बाय हिज रिफॉर्मिस्ट एजेंडा. थ्रेटन, सपोर्ट नहीं करते थे. तो व्हाट डिड ब्रह्मो रिलीजन बिलीव इन. किसमें बिलीव करता है? ओनली वन गॉड. बी इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन. यहाँ पे मोनोथिज्म एंड द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑल मैन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट. यूनिफॉर्मिटी, इक्वल राइट फॉर ऑल मैन. अच्छा, ए और डी है. Which of the following meaning of witted? His education had whetted his appetite for the philosophy and the theology. He spent considerable time studying Vedas. Whetted. His education had whetted his appetite. Polished, smooth, soothed, burnish. Burnish तो नहीं आएगा. His education had whetted his appetite for philosophy and theology, and he spent considerable time studying. Emancipation. Work in the sphere of women's emancipation, modernizing education, and seeking changes to religious orthodoxy finds new relevance. Liberation. Abomination, eviction. Suppression of free speech by yielding into threats has become आता है. An unfortunate norm in countries all over the world. Like the Western countries, India should also regulate the trading of virtual currencies through monetary exchange. Laws should not be interpreted होना चाहिए ना. बी के बाद में बेस्ट फॉर्म क्यों आएगा? The concentrated efforts are needed to a long-term solution for the pollution crisis occurring at the global level. Social media outrage against brand campaigns are fueled by intolerance to progressive rules. Appease. All are correct, appropriate, grammatically inappropriate. India must appease its imports that its produce is compliant with trade demands on GM food. Appease. Discoveries. Great discoveries can come from simple ideas which are often overlooked. Then discoveries. Women's security must not be predicted होता है. Predicted होता है कि predicted क्यों? Predicted.
The transition to GST is still in progress, and AE and overall consumption demand has not weakened. AF and an extension will help to roll out the crucial challenges. GST is still in progress. Progress में है और extension will help the roll out and overall consumption demand. The attempt to securities climate change agenda overall तो नहीं agenda overall consumption नहीं. CF sustain engagement with states and an extension ये भी नहीं हो सकता. CE and overall consumption engagement with states and overall consumption demand has weakened. Not weakened. AE transition to GST is still in progress and demand has weakened. Progress में है और ये weaken हो गया. An extension will help to roll out crucial challenges. Progress extension अगर मिल जाएगा तो Lord outlay for rural guarantee scheme AF will AE D नहीं आएगा. E has Lord outlay for rural guarantee scheme has led to used of allocation and ways of delays. Rural guarantee scheme physical measures should ensure easing छोड़ो क्या दिया है और लास्ट से देखते हैं. इसे तो नहीं करना बिल्कुल. क्या है 21 यहाँ से देखें. The benefit of every government report on inflation is to days us how even intelligent people are often confused even if they may have once been days with economic way thinking. The benefit of every government report on inflation is to days us remind us. Past inflation has led to higher wages which lead to more price increases which combined with higher consumer incomes due to higher wages will days more will have ED तो कुछ में भी नहीं आएगा क्योंकि will है. B maybe ना. If they may have once been days with the economic way of thinking. If they may have once been adapted with the economic way of thinking will consumer incomes due to higher wages will days more inflation will generate more. D the idea that inflation or at least its days can be caused by government creating money seems to have been forgotten if it ever was learned. The idea that inflation or at least its persistence can be caused by government. E tax revenue fall behind spending, so a deficit opens up as a spending tries to keep pace with inflation. Keep stride with pace with inflammation pace. These while those research mapped 92% of the Human Genome Project मैपिंग एस्टेब्लिशमेंट ब्लूप्रिंट तो आर आ जाएगा. इन वह सर्टनली सॉलिड स्टार्ट इनटू सर्विंग तो पहला तो आर है. क्या हुआ कि स्टार्ट किया आर से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इतना में एस्टेब्लिश हुआ था. स्टार्ट इन सर्विंग रिसर्च मैप्ड द मैपिंग एस्टेब्लिश ब्लूप्रिंट नियरली इतना मैपिंग के बारे में बात हो रहा था कि जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रहा है. प्रोजेक्ट to other animals. Genome project establish mapping establish a blueprint research map तो 90 क्यों आ जाएगा फिर देन जाके थर्ड यहाँ पे आता. टाइम्स ऑफ नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है मैथ. थोड़ा सा मार्क करते हैं इसको. 14 का स्क्वायर 196 प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 20 से 16 क्या होगा प्लस 2 6 का स्क्वायर 36 अच्छा प्लस आ जाएगा 56 आ जाएगा. चलो 252 144 12 by 4 3 आ गया प्लस 10 5 8
तो 9 आ जाएगा, 6 है ना, 6 10 हाँ 9, 25 1/4 100 आ गया प्लस 300 और ये आ गया 70 210 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये 300 400 550, तो इसका 2 डबल करने से 100 200 है, तो ये तो जाएगा, तो 2200 प्लस 20% ऑफ 800 2160, तो 2360 15% 16% ऑफ 100, तो 16 आ गया माइनस 60 प्लस 40% ऑफ, तो ये आ जाएगा 80 प्लस 80, तो ये आ जाएगा प्लस 20 36 6 आ जाएगा 40 200, तो 80 माइनस 60, तो 20/12 प्लस 18 होने से 31 माइनस 26 5 4 32 11 352 64 8 9 का स्क्वायर 81, तो यह आ जाएगा 361 441 315 इंटू 10 13, तो ये 5 प्लस 5 10,000 100 3255 25 3 75 प्लस 25 300/300 x इज इक्वल टू x/3 x स्क्वायर इज इक्वल टू 900, तो 30 6400 2400 50 200, तो 2500, ये आ जाएगा 1 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36, तो ये यहाँ पे 9 आता ना, 3 का स्क्वायर, तो 183 रॉन्ग है, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, तो 48 आता, 8 9 17 7 9 16 6 9 15 275 आता, 5 9 14 सही है, 6 प्लस 7 प्लस यहाँ पे 3 1 4 9 1 10 11, फिर यहाँ पे 4 5 और ये 25 35, तो ये 14 आना चाहिए था, 35 फिर यहाँ पे नहीं 35 50 47 48 प्लस 7 4 1 26 64, ये क्या है, गैप 8 6 14 16 का गैप है, यहाँ पे 5 3 8 13 का गैप है, यहाँ पे 4 24 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, ये क्या है, 48 9 17 8 9 17 1 4 1 5 4 9 सही तो है, 48 12 तो नहीं आ रहा है, 16 का गैप में भी नहीं जाएगा, 8 16 32 8 16 32 8 16 यहाँ पे 16 क्यों 0 से क्या हो रहा है, प्लस 7 6 7 13 प्लस यहाँ पे 3 1 4 9 1 10 11, उसके बाद में 35 5 9 35 4 यहाँ पे क्या हो रहा है इंटू 3 नहीं, अच्छा तो देखते हैं, प्लस 10 प्लस आ जाएगा 5 3 8 23 प्लस 8 3 11 4 1 5 3 8 प्लस 4 8 4 12 प्लस यहाँ पे 5 3 55, तो ये दोनों रॉन्ग है, सेकेंड रॉन्ग आएगा 25, मार्क करते हैं यहाँ से अरिथमेटिक, तो देखते हैं क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड बाय ऑल द 6 पर्सन टुगेदर, परसेंटेज दिया है एप्पल प्लस ऑरेंज, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड बाय सी इज हाउ परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड बाय डी, सी ग्रे, सी का कितना हाउ मच परसेंट 20/4
25 4 if the ratio of the number of apples and orange sold by C is इतना then difference between apple and orange, तो ये हो जाएगा 3 4 और ये 14, टोटल आ जा रहा है 3 7 80। सी का कितना दिया है ग्रे 5, तो 100 इंटू 5, तो ये आ जाएगा कितना 16, 4 में करने से ये कितना आ जाएगा 25। जी नहीं आया कुछ, 7 1 8, तो ये 80 आ गया। एप्पल प्लस ऑरेंज सी के लिए, अच्छा सी ग्रे है 20, तो ये 4 ये 25, 14 25 70 28 350। Person F sold each apple and each orange for rupees 3 and 4 if the ratio of the number of apple to number of orange sold by F is इतना, then find the total revenue generated by him। F 20 2000, number of apples to number of orange, apple orange इनके 5, तो ये 400 800 1200। एप्पल के लिए पहला एप्पल है तो 3, इसके लिए 4, टोटल रेवेन्यू 24 बचत 40 72। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड बाय ई इज़ हाउ मच % मोर, ई ब्लू 30 कितना ज़्यादा है। टोटल नंबर ऑफ ए से ए 30 10 20 by 10 200, what is the ratio between the total number of fruits sold by B plus C, ये हो जाएगा 35 together, and the ratio that of E plus F 50। हाँ तो ये 7 और ये 10, 7:10। यहाँ देखते हैं the line graph, total number of books sold by each shop, sum of the number of books sold by online and offline। टोटल नंबर ऑफ बुक A B C D E, ABC टोटल कितना दिया है 3000 45 30 45, ये 20 और ये 43 और ये 375, टोटल आ गया। परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बुक ऑफलाइन आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन है ना, तो ऑफलाइन का हो जाएगा 60%, 1800, then 80 0 2 times 90 to 90 360, then 70% 1400, then 50% half, तो 150 60 2 times, तो ये 30 आ जाएगा, इसको 2 टाइम्स करने से 750 21 2250 आ गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ऑनलाइन में ई, देन नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ऑफलाइन इन द सेम, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ये 0 और ये 7 5 1 5, तो ये 750। एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय B plus C 65/2 325। B sold 25% of the total number of books sold by it offline, sold 25% of the total number of books sold by it offline 360 1/4 900, and 60% of the total number of books sold it by online 900, 60% 540, 2 males, then find total number of books sold by B to males 1440। ratio of the number of books sold online by A and C, ऑनलाइन ये और C का, तो ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 12, तो 2:1। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इज़ मिनिमम फॉर विच, तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है मिनिमम, यहाँ पे 8 का है, यहाँ तो 0 आ जाएगा, तो D। अर्थमेटिक नेक्स्ट पेज में करते हैं। 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 4, तो ये 12 आ गया। देन 7 बोट कैन कवर 36 किलोमीटर इन 540 मिनट्स, तो इसका तो किलोमीटर पर आवर, तो ये 12 किलोमीटर पर आवर आ गया डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम वाइल सेम बोट कैन कवर अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर
किलोमीटर पर आवर, तो 1 minute 60 540 1/60 तो इंटू 60 0, ये 9 और ये हो गया 4, तो ये आ गया ऑफ स्ट्रीम में 4, तो फाइंड द स्ट्रीम माइनस 8/2 4। राम 150% more efficient than Rahul. Rahul 2 3/2, तो ये हो जाएगा 5/2। टाइम गिवन बाय राम टू फिनिश ए वर्क इज 40 लेस देन that of राहुल। एफिशिएंसी टाइम, तो ये 2 और 5 का है। राम का टाइम फिनिश वर्क इज लेस 3 का डिफरेंस दिया है 40 लेस, तो 3 अगर 40 आ जाएगा तो 40/3 आ रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय राम एंड राहुल टुगेदर, तो 40/3 टोटल 3 का वैल्यू तो 5 से 7 आ रहा है, तो ये 4 कांट बी डिटरमाइंड, ये आ जाएगा 400 बाय इतना 150/100 53 52, तो 3/2 प्लस ज़्यादा है, सही होगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 36 बुक्स। CP ऑफ 9 इज इक्वल टू SP ऑफ 36, तो CP/SP इज इक्वल टू 4/1। फाइंड द लॉस परसेंटेज, तो लॉस हुआ 3/4 75%। मस्ट सब्सक्रिबर मिक्स टू वेराइटी ऑफ शुगर 60 kg 65 kg सो दैट द सेलिंग प्राइस एट इतना एंड इतना में ही अर्न प्रॉफिट ऑफ इतना, तो 1/5 6/5 का उसको प्रॉफिट होगा, तो 732/10 इंटू 5/6, ये 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 1200 वहाँ से 21 21 में अगर करें तो दोनों से छोटा आ रहा है, नहीं कुछ रॉन्ग हुआ है, 6/5 तो नहीं आ सकता है, 2 आ गया, 6 दूनी 12 6 और ये 161 आ रहा है, तो ये माइनस करने से इधर 1 आएगा, इससे माइनस करने से 4:1। एम स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट 2500 आफ्टर 4 months एंड जॉइन विथ 2100 इफ द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम टुगेदर एट द एंड, तो 4 मंथ के बाद में आया है, यानी 8 मंथ के लिए लगा हुआ है, तो ये आ गया 3, ये आ गया 2 0 गया 75 42 देम टुगेदर एंड 7 7 5 12 1 2 7, then find the annual profit of n, तो ये आ जाएगा 5460 बाय 42 3 बाय 127 इंटू n का कितना है 42, n का आ जाएगा 42, 7 का टेबल में ये आएगा 7 अष्टा 56 अष्टा 96 10 15 3 में अगर ये जाएगा तो 15 45 16 40 17 51 51 36 18 54 और ये 20, ये 3 में जाने से 4 नहीं 7 2 9 1 10, ये कहाँ से 3 में कट रहा है, क्या क्या रॉन्ग हुआ। एम स्टार्टेड इतना आफ्टर 4 months एंड ज्वाइन इफ़ टोटल प्रॉफिट ऑन देम टुगेदर एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर 4 month, तो 8 month के लिए इसका 12 month 3 4 2 75 42 टुगेदर के साथ 7 4 11 117 तो कितना आएगा ये 117 42 में जाएगा कि 13 9 और ये 9 में जाने से 9 5 9 6 या 54 0, फिर भी कैसे होगा जो 5460 बाय 117 इंटू 42, तो 39 जा 13 4 जा 3 में जा रहा था ना, ये 1820 आ रहा है, इसको 3 में करने से 3 आ रहा है, और इधर से 11 4 दूनी 8 8 4 72 17 आ रहा है, क्या रॉन्ग हो गया, थोड़ा सा करते हैं इसको। एम ने किया 2500 से आफ्टर 4 month एंड जॉइन बिजनेस इंटू 12 3 इंटू 12 4
चार 16, 182 16, 12 2 1 60 109, 182 2 9 2 11 1 1 9 2912 0, 13 54 13 9, फिर इसको 3 में करने से 3 आ जाएगा, इसको 3 में करने से इतना आ रहा है 4, तो 4 × 4 16, 609 182 2912 छोड़ो। P when invested compound interest पर इतना 35% PA amounts to इतना after 2 years. Find the interest ratio when P is invested. Interest received P 35%, 1 + 35/100 amounted to इतना after 2 years. तो इसका स्क्वायर करने से 10935 आएगा, 100 135, तो 100/100 135 × 135 15 में जा रहा है, 59 सा, इसको 15 में करेंगे तो 15 से 10 105 43, 2 × 30 43 135, ये फिर 9 में जा रहा है, ठीक है 981 आ गया, 81, ये 15 × 9, तो ये 9 आ गया, ये 15 आ गया, 3 में करने से 5, 3 में करने से 3, 5 में करने से 20, 6000, पी का वैल्यू आ गया 6000 को 1 ईयर के लिए 35, 2 आ जाएगा 73 2 and 0 0, 10 years ago from now the ratio of R and L इतना था, if L is 10 years elder to R, अगर L जो है इससे इतना बड़ा है 3x + 10 5x + 10, if L is 10 year elder, 10 साल बड़ा है, इसे अगर 10 साल माइनस करेंगे तो 5x आएगा, इधर आने से 2x, तो x का वैल्यू 5 आ रहा है, तो 5 दिया 15, 5 5 25, ये था 10 साल पहले, अभी 25 35 होगा। देन व्हाट विल बी द एज ऑफ L 5 year hence from now, L सेकेंड 40, ये फादर डिवाइडेड सम इतना अमाउंट इस 3 फिगर 25 टोटल अमाउंट रिसीव डिफरेंस बिटवीन R एंड P, 3 2 5 1 6 100 आ रहा है, 100 इतना, तो 520 R एंड P का डिफरेंस 15 आ रहा है, इंटू 15, तो इसका 26 778, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सेट प्लॉट इतना एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इतना मोर देन दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ द प्लॉट, पेरीमीटर अगर 120 है, y 30 आ गया, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 900, इससे 60% मोर है, तो 3/5 8/3/5 9 6/10 540, फाइंड द एरिया, क्या रॉन्ग कर दी, बाय 4 30 900 3/5 8/5 16 16 9 144, इतना, इधर चलिए अब रोशनी 9 7 16 5 21 21 7 147 हो गया, 2 क्वेश्चन रह गए, एक ये क्या है, ये हुआ क्यों नहीं, 7 था गैप, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट सेक्शन, गो टू द नेक्स्ट, Are you experienced yet? No experience hired yet. They are आ गया है, hired आ चुका है, yet no भी जा चुका है, solution are इन दोनों में सेम है, तो BER दिख रहा है, CDX नहीं है, CQ भी नहीं है, देन U के लिए फर्स्ट एंड U नहीं है, एक्सपीरियंस फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्सेप्टिव VDI, देन येट MOT, तो बचा क्या इसमें, VDI जा चुका है, XST आ चुका है, नो के लिए EGH देन ये क्या है, हायर्ड के लिए CX CQ, देन
दे के लिए बी जा चुका है, बी आर जा चुका है, सी क्यू जा चुका है, सी एक्स डी सॉल्यूशन के लिए ई जी एच मोटी एल ओ पी। दे के लिए कौन सा कोड है, ई एक्स टी कहाँ है, नहीं है, अच्छा सी एक्स डी। एल ओ पी है सॉल्यूशन के लिए, यू आर हायर्ड एक्स टी बी आर सी क्यू डब्ल्यू। फॉल्स एक्सपीरियंस सॉल्यूशन बी डी आई सी ओ पी, सॉरी लॉ, ये सही है। सी क्यू डब्ल्यू के लिए हायर्ड है, नो दे आर बी आर, ये भी सही है। येट के लिए एम ओ टी है, मार्क करते हैं। क्या है मीनिंगफुल, बाद में देखेंगे, मार्क करते हैं इसे अभी। ये कहते हैं हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल सिंबल से पहले नंबर, सिंबल से पहले नंबर 5 आ चुका है, सिंबल से पहले नंबर 6 7 8 9, टोटल 9 है। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर बिटवीन सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड एलिमेंट पर्सन एंड द सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द तीन इसके बीच में कितने सिंबल्स है, 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी सिंबल्स आर फॉलोड बाय ऑड नंबर, सिंबल के बाद में ऑड नंबर 1 ऑड नंबर 2 ऑड नंबर 3 के बाद में ऑड नंबर 4। हाउ मेनी व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स इन द 3 + 2 5 5 + 5 10 10 + 2 10 + 5 10 + 5 15 15 10 25 25 5 30। जो द फॉलोइंग टीवी डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू, टी से भी ये आ सकता है, मार्क यहाँ जाते हैं, इसे थोड़ा सा भी स्किप करेंगे, हो गया शायद, अब कुछ है नहीं स्किप करने के लिए, ये करते हैं। सूरज सिटिंग्स वेस्ट ऑफ महेश के वेस्ट में 16 में सूरज है, देन राघव इज सिटिंग बिटवीन सूरज एंड महेश, राघव। नैना कबीर प्रीति, नैना रिधि प्रीति कबीर राघव से 10 मीटर नॉर्थ में आ जाएगा कबीर से साउथ में 20 मीटर में 20, तो ये से 10 में आ जाएगा नैना, उससे वेस्ट में 12 ये 16 था ना, तो ये 8 और ये 8, इससे वेस्ट में है कौन, वेस्ट में प्रीति से नॉर्थ में 5 में आ जाएगा रिधि कितनी है, रिधि दोनों में सैचुरेशन कितना है 13। व्हाट इज़ द डायरेक्शन कबीर प्रीति विद रिस्पेक्ट टू प्रीति कबीर, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से करते हैं। 9 people, topmost floor is 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Rina is living 3 floors above Suresh, Rajesh living floor below Rina से 4 floor below, तो अगर रीना यहाँ पे आएगी 1 2 3 के गैप में राजेश आ जाएगा, 2 के गैप में सुरेश, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव एंड बिलो राम, अच्छा ये रॉन्ग हो गया, फिर राम यहाँ पे आएगी, यहाँ आने से एस यू यहाँ पे, आर जे यहाँ पे, एस यू से 2 के गैप में 1 2, रीना यहाँ पे, राम यहाँ, रीना यहाँ पे, एस यू आर जे यहाँ पे, नहीं हो सकता है ना। श्रेया इज़ लिविंग इमीडिएटली अबव राकेश के इमीडिएटली अबव में श्रेया, अनुष्का इज़ लिविंग ऑन एन ऑड नंबर ऑफ फ्लोर बिलो श्रेया के नीचे में ऑड में, ओके। यहाँ इमीडिएटली बोला गया था ना, श्रेया इमीडिएटली अबव राकेश श्रेया, ऑड नंबर यहाँ पे आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी आएंगे,
Akansa living in a odd number below Shreya, odd number Akansa. टीना इज़ लिविंग वन ऑफ द फ्लोर अबव अनिल, अनिल के ऊपर में टीना। लग तो यही सही रहा है, हो भी गया, फिर कर लेते हैं। श्रेया अगर यहाँ पे होगी तो जो भी है वहाँ पे आकांक्षा, यहाँ पे टीना, टीना इज़ लिविंग वन ऑफ द फ्लोर अबव अनिल, अनिल के ऊपर में टीना। क्या है फिर? रीना लिविंग 3 फ्लोर्स अबव सुरेश, सुरेश से 3 फ्लोर ऊपर में रीना। राजेश लिविंग 4 फ्लोर्स अबव रीना, बिलो क्यों हूँ मैं, जानते बुझते हुए रॉन्ग। पहले तो राम मिडिल में आ गया, राजेश और इसके बीच में 3 का गैप है, तो राजेश यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे रीना, रीना 2 के सुरेश, इतना ही आएगा और तो कुछ नहीं आएगा, ऊपर में है ना। ये होने के बाद में और क्या था? श्रेया इज़ लिविंग इमिडिएटली अबव राकेश, राकेश के ऊपर में श्रेया, इसके नीचे में आकांक्षा और यहाँ पे टीना अबव अनिल, अनिल। टीना इज़ लिविंग ऑन 9th फ्लोर अबव आकांक्षा, आकांक्षा के ऊपर में इमिडिएटली अबव टीना। राकेश एंड अनिल, राकेश एंड अनिल 1 2 3। 7th में है श्रेया, सुरेश आकांक्षा, सुरेश और आकांक्षा 1 2 3, नहीं सुरेश नहीं, हाँ सुरेश आकांक्षा 1, रीना और राकेश, रीना और राकेश 1, रीना और टीना, ये ज़्यादा का गैप है। राम श्रेया 1 का गैप है। There are 10 shops in facing either north or south, not adjacent shop facing the same direction. P seats a piece at one of the extreme end of the row, 10 है ना, and is south facing, तो इधर नहीं आ सकता ये, तो P इधर में आने से 4th राइट में Q है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। There are 2 between Q and S, Q और S के बीच में 2 हैं, 1 2 3 4 5 Q 1 2 3 P, Q और S के बीच में 2। R exactly Q और T के exactly middle, R is facing south, U is adjacent to R, Q और T के exactly middle 1 2, Q और T के exactly middle, R से adjacent में, Q और T के मिडिल में R नहीं आ सकता, तो इधर में आएगा Q और T के मिडिल में R के R फेसिंग साउथ, U, देयर आर 2 बिटवीन U एंड V, यहाँ नहीं आ सकता, फिर U यहाँ पे 1 2 V, 1 सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ W, Y इज टू द लेफ्ट ऑफ W, द सेम डायरेक्शन, नॉट टू एडजेसेंट। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ एंड ये साउथ, no two adjacent shops are facing the same direction। एश, तो अगर एस यहाँ पे आएगा तो आर यहाँ नहीं आ सकता है ना, एक्जैक्टली आर और आर इज टेलिंग द मिडिल ऑफ क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में नहीं आ सकता क्योंकि आर के एडजेसेंट में फिर ये भी है, तो 1 2 आने से आर अगर यहाँ पे आ रहा है, आर इज़ फेसिंग साउथ, इसके अगर यू यहाँ पे आ रहा है, यू और वी के बीच में 2 हैं, एक तो करके भी इधर आएगा, इसके बाद में ये भी तो सेम ही आ रहा है ना, ये नॉर्थ आ जाएगा, पी इज फेसिंग साउथ, 4th राइट में ये साउथ, ये नॉर्थ, साउथ नॉर्थ साउथ, नो टू एडजेसेंट साउथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, फिर ये कैसे होगा, क्या हो गया इसमें? P is at one of the extreme end and is south facing, और P के 4th राइट में Q है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, there are 2 shops between Q and S, या तो इधर 2 3 4 5 1 2 3, या तो इधर, R is exactly in the middle of Q and T, Q और T के बीच में अगर R यहाँ पे आ रहा है, एक का गैप नहीं आ सकता, यहाँ पे भी तो नहीं आ रहा है, Q और T के एक्जैक्टली मिडिल में, नहीं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली मिडिल में आर यहाँ पे आएगा, आर इज़ फेसिंग साउथ और यू इज़ एडजेसेंट टू आर, ये कैसे होगा फिर? क्यू और टी के बीच में
एक दो इधर जा रहा है तो Q 2 का गैप एग्जैक्टली मिडिल वाला क्या है, 10 शॉप्स है। U is adjacent to R, R is exactly middle of Q and T। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 तो गैप ऑफ 3। 2 शॉप बिटवीन Q and S, Q and S, Q and T के बीच में, और R के एडजेसेंट में U भी है। यहाँ पे होगा तो नो टू एडजेसेंट शॉप्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ये अगर साउथ आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ आएगा, ये साउथ आएगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ 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 तो पास आ जा रहे हैं। नो टू एडजेसेंट शॉप्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यही तो सबसे रॉन्ग हो रहा है। Q 1 2 छोड़ो इसे, क्या है यहाँ से देखते हैं। 10 people to parallel row, 5 each people sitting L1 facing north। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L1 facing north, L2 facing south। A is sitting at extreme end, B is sitting to the right of A, C is sitting immediate। तो कौन कहाँ बैठ रहा है? C is sitting immediate left of the person who is sitting opposite to B। J is sitting at one person and is facing north। J यहाँ पे आ जाएगा to the right of I। इसे थोड़ा स्किप करते हैं, अभी इतना क्यों लंबा है ये एक ये है, इसे करते हैं। बैंक जूनियर मोस्ट सीनियर मोस्ट, तो GM DGM AGM मैनेजर AM PO एंड क्लर्क। 1 2 3 4 5 6 7। Jack is 3 generations senior to Jim, Tim is senior to Jack, Bill is PO Bill, Kim is 3 generations junior to Tim, Cole is junior to Jack and Cole इज़ नॉट AGM। कॉल जो है वो AGM नहीं है, और इसके लिए क्या बोला गया है, जैक 3 जनरेशन सीनियर है 1 2 जिम से, टीम इज़ सीनियर टू जैक, जैक से ऊपर में टीम, और किम इज़ 3 जनरेशन जूनियर टू टीम। तो यहाँ पे आ जाएगा किम। कॉल इज़ जूनियर टू ड्रैक, ड्रैक के जूनियर में कॉल आ जाएगा। टीम अगर यहाँ पे आ रहा है, जैक यहाँ पे 1 2 करके, जिम यहाँ पे, टीम जैक 1 2 जैम जो भी 1 2 की के एम, और नीचे आएगा कि नहीं, इतने ही हो सकता है। कॉल ड्रैग के नीचे में जूनियर टू ड्रैग कॉल हो गया। हाउ मेनी सीनियर टू ड्रैग 2। जिम इज डैश जैसे सीनियर टू कॉल, जिम 2 DGM जैक GM टीम, जैक इज डैश टू किम, जैक इज टू किम से 2 जनरेशन सीनियर 2 सीनियर। ये हो गया ना, इसे करते हैं, यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से। राम इज ग्रैंडफादर ऑफ राजा के ग्रैंडफादर राम, एंड इज मैरिड टू सुलेखा इज ओनली 2 सन एंड बोथ आर मैरिड। तो 2 सन है एंड बोथ आर मैरिड भी है। सुनीता इज सिस्टर इन लॉ ऑफ राघव हु हैज़ नो चाइल्ड, राघव का सिस्टर इन लॉ हु हैज़ नो चाइल्ड। सोनम राघव, उसकी सिस्टर इन लॉ सुनीता, एक मिनट, बोला कि सुलेखा है ओनली 2 सन्स एंड बोथ आर मैरिड, उसका चाइल्ड नहीं है। अच्छा, तो राघव यहाँ लोकेश, सोनम एंड लोकेश आर फीमेल एंड मेल मेंबर रेस्पेक्टिवली। सोनम फीमेल है, सोनम एंड लोकेश। Raja is only child of his parents. Neither Ram nor Sulekha has any sibling. Neither Ram nor Sulekha
टोटल कितने हैं 7, 4, 3, 7, 3 जनरेशन. How Sonam is related to? Sonam is related to Raja. Sonam is the aunt. Sulekha is race of Sunita. Sulekha is mother-in-law. What is the suitable? True. A से D के बीच में true आएगा और F से C के बीच में भी true आएगा. F से C. अगर करने से तो इक्वल टू आ जाएगा. ये हो गया. ये क्या क्वेश्चन है? ये कौन सा करें? A is sitting at one of the extreme ends. B is sitting third to the right of A. अगर ये यहाँ पे आएगा तो थर्ड राइट में यहाँ पे. अगर ये यहाँ पे तो थर्ड राइट में B यहाँ पे. C is sitting immediate left of the person who is opposite to B. B के अपोजिट में जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में C. D के अपोजिट में उसके लेफ्ट C. D is sitting third to the right of C. C के थर्ड फर्स्ट देन थर्ड में D. D. E is sitting opposite to F. E और F तो यहाँ पे आ जाएगा. G is sitting adjacent to F. F. G and D are not sitting opposite to each other. तो यहाँ पे ये नहीं आ सकता है. तो F यहाँ पे और F के एडजेसेंट में यहाँ पे और ये यहाँ पे. E और F यहाँ पे. F के एडजेसेंट में कौन नहीं है? G and D are not adjacent. E F F के एडजेसेंट में not sitting opposite G और D. तो यहाँ पे E आ जाएगा, यहाँ पे F, यहाँ पे G. Then H is sitting third to the right of I. I के थर्ड राइट में H. I के थर्ड राइट में H. J is sitting at the facing north. तो J यहाँ पे आ जाएगा. Like sitting not sitting same row as B. E I H D. D. Sitting second to the right of G. G के second राइट में D. Opposite to G B. Sitting to the right of H. H के राइट में 0. None. Sitting immediate right of I. I के immediate right में E. E is facing south. ये हो गया. ये क्या इतना है कि how many meaningful? How many? First H R then show O then show then I A. ये क्या है? या इधर नाम किसी का नाम बन जा रहा है. रो नहीं पता नहीं, इसे तो करना ही नहीं है. P sit exchange at one of the extreme end and is facing south. Q is 4 to the right of Q. There are 2 person between Q and S. 4 5 6 7 8 9. अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही तो है. तो मेरा 68.25 हुआ. इंग्लिश में 15 अटैम्प्ट था, इसमें से 5 रॉन्ग है. न्यूमेरिकबिलिटी में 1 रॉन्ग हो गया, 33 अटैम्प्ट था. रीजनिंग में भी 1 लिस्ट करते हैं. तो इसमें क्या हुआ था ना, बाहर एक बच्चा आया हुआ था, उसको उसके पापा से बात करनी थी. मुझे ना चाहते हुए वीडियो को पॉज करना पड़ा. मैं गई लेकिन उसके पापा फ़ोन नहीं उठाए. मैं वहाँ पे 3 मिनट तक खड़े होकर वही सोच रही हूँ अगर मैं अभी स्टार्ट करती हूँ तो फिर मुझे पॉज ना करना पड़े. तो जब मैं आई मैं पैसेज पूरा भूल चुकी थी, मैं क्या पढ़ी हूँ क्या क्वेश्चन कर रही थी. तो मुझे फिर दोबारा से इसको देखना पड़ा. तो उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया. जो उस टाइम पे क्लिक भी नहीं हो रहा है कि मैं बहुत टाइम दे चुकी, तो मुझे नेक्स्ट पे जाना चाहिए. तो फिर लास्ट के 5 to 6 मिनट में मैं बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने लगी. तो रॉन्ग कौन सा था? ये मेरा रॉन्ग हो गया था. ये भी एक रॉन्ग था, पता नहीं. उसके बाद में इसमें रॉन्ग हो गया है. मुझे लगा एपीज यहाँ पे रॉन्ग है, जबकि नहीं है. वो यहाँ पे प्रोड्यूस आएगा, इसमें प्रेडिकेटेड सही था. मैथ में जो है रॉन्ग कौन सा हुआ? ये एक रॉन्ग हो गया था. इसमें क्या हुआ था, मैं जो ये 1093 और 114 का जो गैप था, ये मेरा 11 आ रहा था. मैं ये कोई क्वेश्चन है ना इसमें आएंगे. तो ये एक मेरा रॉन्ग हो गया था. इसमें मेरा क्या गलती था, मैं इसको 4 काउंट नहीं की थी. बाकी सब अच्छे से बन गए थे. बाकी ये जो पजल है ना, मैं पता नहीं कितने, इसमें मुझे एक कन्फ्यूजन आ रहा था. आर इज एक्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ क्यू एंड टी था. तो इसमें मैं क्यों स्टॉक हो रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा है. मैं एनी टाइम जो गैप था उसे पता नहीं क्यों 2 का गैप लेके कर रही थी. क्यू और टी के बीच में आर का जो गैप है वो 2 का गैप लेके करती थी, जबकि 1 गैप लेके भी पॉसिबल था. तो मार्क्स में मेरे 75 80 प्लस ऐसे मार्क्स आ रहे हैं. मैं खुद को यही समझा रही हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.